welcome you to this talk on behalf of SD College Managing Committee, the principal of our college, Dr. Rajendra Singh, our faculty members, and the budding scientists who are really eager to listen to your inputs today about the technological advancements or innovations in this field. As we all know that this talk is being organized by Institutions Innovation Cell, which is working under MHRD, and an Entrepreneur Development Cell of the college. They go hand in hand to encourage and inspire our young minds to move ahead with their original innovative ideas to transform their dreams into reality. So we are thankful that you've accepted our invitation to share your insights on the topic today. We provide a fertile environment through discussions, webinars, different workshops to these young budding scientists who aspire to lead the world like all other entrepreneurs or innovative scientists like Elon Musk or Ritesh Agarwal, to name a few. And they all really want to be so. So we really give them that background, and we really work hard to give them this kind of environment in our institution. Friends, before we move ahead with this illuminating talk, our learned speaker today, I would take this opportunity to formally introduce him to our participants. Dr. Sharma has more than 27 years of experience to his credit in the field of science popularization, science teachers training, research in science education, and teaching through open and distance mode. He's been promoting innovation, entrepreneurship, and startups among the students of IGNOU, New Delhi. His varied interests include publication of a popular science magazine titled Vigyan Aapke Liye for the last 21 years. And one more magazine is there to his credit, that is Innovate India. He's also designed and developed famous science web portal, World of Science. He is also recipient of President's Award twice for promotion of science and technology. He has various other technological awards to his credit. Dr. Sharma has authored several books and numerous articles and research papers in different prestigious books and journals. So we have with us a renowned scientist, a famous personality. And Dr. Sharma, I formally welcome to this talk today in our esteemed institution, that is SD College. I welcome you once again. Thank you. Thank you, Dr. Welcome. Over to Dr. Prem Singh. Thank you very much, ma'am. Now I request sir to deliver his lecture. Dr. Om Prakash Sharma, sir, please. Ji. Thank you, Dr. Prem Singh ji and Dr. Alka madam and Dr. Prati ji and principal. See whether he is there or not. But I'm really thankful to all of you for giving me this opportunity to interact with the faculty and the students of your college. So very good morning to all of you. And the topic today, which IIC SD College has chosen, is very important: innovation and entrepreneurship. Not only from this point of view that the participants will become entrepreneur or will set up their businesses and something big thing they will do. They might be interested in doing big things in their own areas whatever their interest is there. But these two terms, innovation and entrepreneurship, are very important in our day-to-day life also. This I would like to stress upon here. Dr. Prem Singh ji, agar aap problem nahi ho to I would like to talk bilingual, Hindi or English, so that this will be maybe convenient to all the participants also. Sometimes, is that okay? Yes, sir.
So, in fact, the government of India is also making a lot of efforts to promote innovation, entrepreneurship, and startup in the country. Several schemes are there to support the entrepreneurs, innovators, and several schemes are there to create this kind of ecosystem, innovation and startup ecosystem in the higher education institutions. And you can see this institutions innovation council is also one of such initiative by way of which colleges, universities, and institutions, they are trying to build an environment of innovation entrepreneurship. Basically, the purpose of this is first thing is to create that kind of environment that people will start talking about innovation, entrepreneurship, startup. For example, today we will be discussing, you may be thinking, what is this all innovation? What is this entrepreneurship? What is startup? What is the difference between entrepreneurship and normal business, which are neighboring people are doing in your neighborhood? There is a Kirana shop or some other shops are there. Are those all in the category of startup or entrepreneurship, or can those be brought in this category? So this kind of things we will discuss today. But I would like to congratulate the Institutions Innovation Council of the college for taking this kind of initiative, and I would like to suggest you that you kindly continue this kind of programs, discussions, talks, debates, so that students as well as the faculty, they start discussing, talking about the innovation. They start finding innovative solutions in their surrounding. They start thinking of the problems around there. Because when we talk about the innovation or entrepreneurship, always they come from some problem. Some need is there, some requirement is there. When we are sensitive towards our environment, what kind of problems are there, what kind of challenges there are in your individual life, in your family life, in your society life, in your country's life, then you may be, I think, forced to think of some solution also. And many times we keep on thinking such solutions. We notice some problem and then we find some solution that is not a routine kind of solution. And when that solution is not routine kind of solution, then that becomes innovative solution. That becomes a solution which is a different from the routine solutions. So that way, innovation and entrepreneurship is very important, not only to set up an enterprise or a startup, but also in our day-to-day life. Whatever career you are choosing, you become an officer in any government office or in private organization, there also these skills, basically innovative mindset, entrepreneurial skills, these are very important. They will help you there also. What are those skills? What is that innovative mindset that I will discuss in my presentation today? And you can correlate those all things in your day-to-day life also. Even if you are not in any job, you are not in any business, you are a simple, simply job, you are searching a job or doing something else in your daily life, then also these skills are going to help you in that case. So with this introduction, I would like to share my presentation that I think will be. Can you please see my slide? Somebody will Yes, see sir. that? Yes. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Visible. Thank you very much. So my talking on encouraging students towards innovation and entrepreneurship. And this, I gave you a little background of this innovation and entrepreneurship. Before I proceed, I think it will be good to read this message of our beloved, learned, former president of the country, a very renowned scientist, Dr. APJ Abdul Kalam. His message is like my message, especially to young people, is to have courage to think differently.
These are the terms which I have highlighted in red prominently, because these are basically the things, concepts which are going to lead towards an innovator or entrepreneur. Have courage to think differently. Any problem you are facing, if you are thinking differently, you're finding some new solution, then that must be our inherent quality. Courage to invent, to travel the unexplored path, courage to discover the impossible and to conquer the problems and succeed. These are great qualities that they must work towards. This is my message to the young people. This was basically a statement or the thought of Dr. APJ Abdul Kalam, and these thoughts are very much important in our today's context also when we talk about the innovation entrepreneurship. You can notice some of the innovative initiatives which the people have taken during the COVID pandemic, and you can see what forced people to think of these. You can see this is a kind of arrangement done by some people. Why it was done? There was a problem of not touching the tap water or the items which one already touched. So what is the solution to wash your hands or mouth, face without touching the things with the help of foot? That was the need of the time that time, you can notice. And that need led to this kind of innovation. सबको ये पता था कि बिना किसी चीज को छुए हुए हमें अपने हाथों को साफ करना है, तो कैसे करेंगे? क्या कोई ऐसा जो हम लोग बहुत फेमस है जिस मामले में कि एक जुगाड़ की जो बात करते हैं, बेसिकली अगर आप इसका एक पहला वर्जन अगर आप देखेंगे तो वो एक जुगाड़ की फॉर्म नहीं था, लेकिन दैट वाज अगेन मॉडिफाइड, इम्प्रूव्ड, और वो एक फॉर्मेट में आया कि पैर की मदद से आप उसको वाटर टेप को ऑन कर सकते हैं और अपने हाथ साफ कर सकते हैं। और इसी के बेसिस पे अगर हम दूसरा देखेंगे, सैनिटाइज करने के लिए था कि यू आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड और वहाँ कोई नहीं है, आपको हाथों को सैनिटाइज करना है और विदाउट टचिंग दैट बोतल ऑफ सैनिटाइजर आपको हाथों को साफ करना। दिस वाज द नीड ऑफ द, मैं एम्फसाइज ये करना चाह रहा हूँ कि इनोवेशंस की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। ये जो दो एग्जाम्पल हैं, ये आगे की भी एग्जाम्पल हैं। There was a need and problem, people were facing challenges, and similarly this was also another kind of innovation जिसमें मास्क की भी जरूरत है, और अगर जरूरत पड़ती है तो उसी के साथ में कहीं आप ऑक्सीजन सप्लाई भी दे सकते हैं। ये कहीं किसी के दिमाग में आया कि क्यों ना हम ऐसा करें कि मास्क भी लगा रहे हैं और ऑक्सीजन सप्लाई भी हम साथ साथ देते रहें। इस तरीके का क्या कोई एक नया कोई अरेंजमेंट किया जा सकता है, कोई सॉल्यूशन दिया जा सकता है। एंड यू कैन सी सबको जरूरत थी व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, पब्लिक से आ रहे हैं, कहीं बाहर से आ रहे हैं, तो यू नीड टू सैनिटाइज योरसेल्फ होल बॉडी, नॉट ओनली योर हैंड्स एंड फेस। तो उसके लिए दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट बहुत इंस्टीट्यूशंस ने, टेक्नोलॉजी IITs वगैरह ने बनाए, एंड देन दे बिकेम वेरी फेमस आल्सो। एंड द नीड ऑफ दिस PPE kit, यू नो, इन आवर कंट्री PPE किट का कोई चलन नहीं था, बहुत ज्यादा यूज नहीं होती। इवन इन द हॉस्पिटल्स इट वाज नॉट यूज्ड मच, बट द सिचुएशन दैट कंपेल्ड द पीपल टू थिंक ऑफ प्रिपेयरिंग, मैन्युफैक्चरिंग दिस PPE किट। और PPE किट का आप अगर आप हिस्ट्री देखते हैं 1-1.5 साल का, तो आप देखेंगे कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थे, जो आपका ये जो टेक्सटाइल के और बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग करते थे, उनके इसमें उनकी जो फैक्ट्रीज हैं बंद हो गई। देयर वाज ए नीड ऑफ डिमांड ऑफ PPE किट, तो दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग दिस काइंड ऑफ किट। और आज की डेट में हमारा कंट्री, आप सब जानते हैं, दैट हैज बिकम ए वेरी बिग supplier of this PPE kit, and this was basically the requirement of the time. सिमिलरली वेंटिलेटर के लिए, वेंटिलेटर, लो कॉस्ट वेंटिलेटर की सब डिमांड कर रहे थे कि देयर शुड बी ए लो कॉस्ट वेंटिलेटर, इजीली ट्रांसपोर्टेबल, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। सो दिस वाज ए रुद्रा ventilator developed by one of the Indian institutes, and similarly another ventilator was this. The designs are different, functions are different, but the purpose is same. And
This was developed by Reva University in Bengaluru, and then again another innovative device, innovative setup that was developed during this Corona period was these are the few examples which I want to share with you. What was important in these cases? Number one, there was a need of something different, and problem was there, some challenge was there. Then people thought of different solution, innovative solution. One thing, need, innovative solution, and third thing was, in some cases you can see this has been commercialized now in all institutes, in all offices it is available. It has been commercialized, this also has been commercialized. Many of these products have been commercialized. So three stages I wanted to highlight here. That is there was a need or problem. Another third thing was the innovative solution, some solution which is different from the traditional one. And third was the commercialization. If you are able to do these three things together, then you means you will be able to develop or become an entrepreneur. Innovation to solve a problem and commercialize this. So now I would like to talk about the who is an entrepreneur. Someone who has the ability and desire to establish, administer and succeed in a startup venture. एक ऐसा बिजनेस वेंचर जिसको आप स्टेब्लिश कर सकते हैं, सबसे पहले उसको आपके अंदर एक क्षमता होनी चाहिए, एक एबिलिटी होनी चाहिए कि आप यस यू कैन डू दिस थिंग. एंड देन सेकंड थिंग इज डिजायर, यस यू वांट टू डू दिस. अगर आपके अंदर क्षमता भी है, अगर आपके अंदर विलिंगनेस नहीं है, यू आर नॉट इंटरेस्टेड, तो आप एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे, आप मन से काम नहीं कर पाएंगे. ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं, आपकी क्षमता भी जरूरी है और आपकी इच्छा शक्ति भी बहुत जरूरी है कोई भी अपना एस्टेब्लिश करने के लिए. एडमिनिस्टर एंड सक्सीड, जब आपके अंदर एबिलिटी एंड डिजायर होगी, देन यू विल बी अ गुड एडमिनिस्टर and then will be able to succeed also. If you are having these skills, then I think you are a person who can think of being an entrepreneur. और बहुत important चीज ये है in case of entrepreneurship that all people who are the expert in the field, they highlight this risk ability, risk taking ability. आप कोई अपना बिजनेस करते हैं, आज बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन कल को कौन सी अनडिजायरेबल अनवांटेड सिचुएशंस आती हैं दैट कैन फोर्स यू समथिंग जो आप एक्सपेक्ट नहीं कभी किए, तो उनको भी हैंडल करने की आपके अंदर एबिलिटी हो, रिस्क टेकिंग एबिलिटी हो. समटाइम्स इन बिजनेस देयर आर अप्स एंड डाउन्स, सो दीज ऑल थिंग्स इफ यू आर हैविंग, देन यू आर एंटरप्रेन्योर. एंड आई वुड लाइक टू टेल यू हियर वेरी इंपॉर्टेंट, ये एबिलिटी एंड डिजायर टू एस्टेब्लिश, एडमिनिस्टर एंड सक्सीड करना या एडमिनिस्टर करना किसी भी काम को, इफ यू आर वर्किंग इन एन ऑफिस, कहीं भी अपना काम कर रहे हैं या किसी दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, ये एबिलिटी आपको बीइंग नॉट एन एंटरप्रेन्योर, इवन देन आपके अंदर ये एबिलिटी होती है, तो यू आर ए गुड वर्कर, गुड ऑफिसर. ये जो स्किल्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. इवन हम एक अपने नॉर्मल लाइफ की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स आर नॉर्मली सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज. क्योंकि अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में आना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, और आई वुड लाइक टू से इफ यू आर थिंकिंग ऑफ सम न्यू आइडियाज, हम ऐसा सोचते हैं कि इस सोसाइटी की एक प्रॉब्लम है. पेंडेमिक के दौरान प्रॉब्लम क्या आती है कि हम लोग मार्केट में नहीं जा रहे थे, सामान घर पे कैसे मंगाएं, तो बहुत सी दुकान वालों ने जो किराना की शॉप पर से दे डिड समथिंग न्यू कि कैसे करें हम अपनी बिजनेस को भी चलाते रहें और लोगों के घर पे सामान पहुंचा दें. व्हाट दे केम आउट विद न्यू आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज, और उन्होंने आपके घर पे सप्लाई शुरू कर दिया, चाहे बोले उन्होंने लोकल व्हाट्सएप ग्रुप बनाए या कुछ और भी किया, whatever, but they did something differently, and you also might have done many things differently during this period. तो अगर आपके पास में न्यू आइडियाज हैं, इनोवेटर्स हैं, then you are certainly a entrepreneur. Entrepreneurs are able to take the first step into making the world better. क्यों जरूरत है, अगर आप अपना एंटरप्रेन्योरशिप कोई सेटअप करना चाहते हैं, then certainly that will be a very unique step towards the growth of the country, growth of the economy of the country, to make the world better place. क्योंकि आपका contribution not only as a worker होगा, your contribution will be now in a multifarious. आप
प्रॉब्लम्स को सोचेंगे, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सोचेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को सोचेंगे कि कैसे मुझे अपने जो स्टार्टअप है, बिजनेस है, हाउ टू इंक्रीज इट एवरी डे, देन इन दैट केस अगर हर हम व्यक्ति हम में से इस तरीके से सोचने लगता है, देन आई थिंक वी विल बी कंट्रीब्यूटिंग मच मोर to the society, to the world, to make it a better place. Entrepreneurs see possibilities and solutions where the average person only sees annoyances and problems. ये एक डिफरेंस मैं आपको बहुत क्लियरली बताना चाहता हूँ कि इफ यू आर हैविंग एंटरप्रेन्योरियल माइंड, तो आपके सामने अगर कोई प्रॉब्लम भी आ रही है, you will not be problem oriented kind of people, you will be solution oriented kind of people. सॉल्यूशन, उसका कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इज बेसिकली पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ. अगर प्रॉब्लम नहीं होगी तो फिर हम तो हमारी जिंदगी बेकार होगी. बट एंटरप्रेन्योर्स दे ऑलवेज थिंक ऑफ सॉल्यूशंस, पॉसिबिलिटीज ऑफ फाइंड इनोवेटिव सॉल्यूशन. लेकिन जो नॉर्मल पर्सन है, एवरेज पर्सन है, से दे थिंक ओनली अरे एक और समस्या आ गई, कैसे करें, कैसे हैंडल करें, ये सारी चीजें. नाउ थिंग इज व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप. सम पार्ट ऑफ दैट आई हैव ऑलरेडी कवर्ड, बट I would like to highlight here again. Entrepreneurship is the act of creating a business or a businesses while building and scaling to it to generate a profit. यहाँ एक बहुत important चीज है जो मैं आपके साथ में highlight करना चाहता हूँ. बिजनेस क्रिएट करना, act of creating business और businesses basically कई सारे आप बिजनेस भी कर सकते हैं. While building and escalating is generate a profit. प्रॉफिट तो आप, अगर मैं एक बार बार एग्जांपल ले रहा हूँ कि किराना की दुकान अगर आपके पड़ोस में है, वो भी एक बिजनेस है, लेकिन वो बिजनेस क्या प्रॉफिट वो भी ले रहा है, लेकिन वहाँ एक जो लिमिटेशन क्या है कि उसको स्केलिंग की पॉसिबिलिटी, अगर आपको मल्टीपल सेटअप्स करने हैं, मल्टीपल आउटलेट्स बनाने हैं, उसको पूरी इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में उसको फैलाना है, दैट काइंड ऑफ एस्पेक्ट विल नॉट बी देयर. अगर आपकी बिजनेस में कोई बहुत इनोवेटिव यूनिक आइडिया है एंड यू आर क्रिएटिंग दैट काइंड ऑफ बिजनेस, देन इट इज एंटरप्रेन्योरशिप. अदरवाइज वो एक नॉर्मल बिजनेस की कैटेगरी में आता है जो हम सब लोग जानते हैं. और मॉडर्न एंटरप्रेन्योरशिप डेफिनेशन इज आल्सो अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड बाय सॉल्विंग बिग प्रॉब्लम्स. जैसे अभी एग्जांपल मैंने लिया आपके सामने कि जो सैनिटाइजेशन की प्रॉब्लम थी हमारे सबके सामने, लोगों ने क्या किया, जो लिकर और जो हमारा फॉर्मल्डिहाइड, हम जो अल्कोहल यूज कर रहे थे फॉर डिफरेंट पर्पज, जो जिस वजह से वो यूज भी नहीं हो रहा था, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे, बट दोज फैक्ट्रीज दे स्टार्टेड मेकिंग और कन्वर्टिंग दैट अल्कोहल इनटू द सैनिटाइजर्स. और उन्होंने वो जो नीड के हिसाब से, सोसाइटी की जरूरत के हिसाब से, जो प्रॉब्लम को देखते हुए, दे स्टार्टेड टू सॉल्व ए बिग प्रॉब्लम, और वो एक बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स बन गए, बड़े बड़े स्टार्टअप्स की कैटेगरी में आ गए. तो दैट इज बेसिकली एक डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड बाय सॉल्विंग बिग प्रॉब्लम, लाइक ब्रिंगिंग अबाउट सोशल चेंजेस और क्रिएटिंग एन इनोवेटिव प्रोडक्ट. इनोवेटिव प्रोडक्ट्स की मैंने जो बात की आपके साथ में, दोज आर द एग्जांपल्स ऑफ इट. एंटरप्रेन्योरशिप is to take their career and dreams into their hands. Basically, जब हम एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं, मैंने आपसे कहा कि दो चीजें होती हैं. एक एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स लेकर के यू आर बिकमिंग एन एम्प्लॉय ऑफ सम ऑर्गेनाइजेशन, मे बी गवर्नमेंट और प्राइवेट. वहां भी अगर आपके पास में इनोवेटिव माइंडसेट है, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स हैं, देन यू विल बी एबल टू डिलीवर मच मच बेटर. लेकिन उस केस में क्या होगा, आप फिर भी वहां एक एम्प्लॉय रहेंगे, आप एक वर्कर रहेंगे. यू सिंपली विल बी वन सिंगल one person among many. But if you are creating your enterprise, you are creating your startup, then in that case सारा का सारा जो business है, that will be your own. That will be the profit, loss, employees and the infrastructure, that will be all in your hands. और in a way हम ये कह सकते हैं that you will be your own boss, और you will not be a job seeker. उसके केस में आप जॉब प्रोवाइडर होंगे, बहुत लोगों को जॉब प्रोवाइड करेंगे. और एक दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ ये है कि व्हेन यू बिकम एंटरप्रेन्योर, तो आप, क्योंकि आपने अपनी बिजनेस सेटअप की हुई है, तो आपके दिमाग में हमेशा रहेगा कि बाय हुक और क्रुक कल उसको और बढ़ाना है, और आगे बढ़ाना है. और आगे बढ़ाने के लिए यू विल ऑलवेज थिंकिंग कि मुझे व्हाट शुड बी डन सो दैट
whatever the turnout is today, that should be increased tomorrow. Whatever services I am providing to the customer today, that should be better tomorrow. Whatever products I am making today, they should be more products, more useful products in society. So आपका दिमाग, पैसा और जो भी सोच है, every time that will be. So it means आपका full utilization towards the development of the society and the country होगा. So that is basically a big difference between entrepreneur and simply a person who is working in any organization. It is about building a life on your own terms. You can say आप 8 से शाम को 5 बजे तक काम करना चाहते हैं या 8 से रात को 12 बजे काम करना चाहते हैं, किस समय आपको कंफर्टेबल है, किस समय किस तरीके से टाइमिंग की मैनेजमेंट करना है, कितने वर्कर्स को आपको रखना है, कितने वर्कर्स को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है. Those all things will be on your terms and you can make your terms as per the requirement of your that enterprise. Why entrepreneurship for you? मैं बार बार कह रहा हूँ because entrepreneurship is not only to set up your own business or to set up your own startup. Entrepreneurship एक ऐसी क्वालिटी है, ऐसी स्किल है जो कि अपने ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है. If you are having those entrepreneurial skills, then you will be a successful person in your life also. एक स्टडी का मैंने एक रेफरेंस लिया है, बीइंग योर ओन बॉस. पूछा गया कि आप एंटरप्रेन्योर क्यों बनना चाहते हैं, तो 41% ने कहा कि चूंकि सारी पावर सब कुछ मेरे हाथ में होगा, दैट्स व्हाई आई वांट टू बिकम ए एंटरप्रेन्योर, टू बी माय योर ओन बॉस. जिसके केस में ऑल पावर्स विल बी विद मी, freedom will be with me, flexibility will be with me, timing management will be with me, and the decisions, whatever decisions I am taking in the interest of the customer, in the interest of the employee, in the interest of the company, whatever we have said, that everything will be with me. That's why I want to be entrepreneur. और ऐसे 41% लोगों की ये बर्थ चेंज भी हो सकता है अगर कोई और दूसरी स्टडी होगी, then it can be. And 36% people, they want that opportunity to fully pursue your passion. Because entrepreneurship में एक और बहुत important चीज है कि if you are having a passion to work in a certain field and you are working as an entrepreneur in that field, then there are more chances of being successful, more chances of making it a dream come true. So this is an opportunity to create. If you are, suppose you are interested in a teaching learning, and these days online teaching learning is a very much being used by many people, और आपके पास में एक अलग से पढ़ने का एक तरीका है, और उसको ऑनलाइन को जो आजकल चल रहे हैं उनसे अलग तरीके से कुछ करना चाहते हैं, तो आप अपने पैशन को परस्यू कर सकते हैं. आप उसको एक स्टार्टअप में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं. बहुत लोगों ने किया है. मैं आज ही देख रहा था कि एक बाइजू का है, उनका जो फाउंडर है, दैट आई थिंक स्टार्टेड सम टीचिंग अर्लियर individual level, but now it has become a, you can see what is the level of that company. There is an unlimited income potential. If you are an employee only, तो आपके साथ में क्या जो fixed salary है at the end of month, that only you will get. But if you are an entrepreneur, successful entrepreneur है, आपने सही डायरेक्शन में सही तरीके का निर्णय लेकर के काम किया है, तो आप उसको किसी भी लिमिट तक बढ़ा सकते हैं. आप देखिए कि जितने सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो सब इसी तरीके से, आप क्योंकि उनका फुल स्ट्रेंथ, फुल पावर, फुल विजडम they are utilizing for the purpose of growth of their startup, their enterprise or their company or business. तो अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल भी वहां रहता है. अगर आप मेहनत ज्यादा कर रहे हैं, देयर विल बी सर्टेनली बहुत ज्यादा इनकम का भी पॉसिबिलिटी होगी. डेवलपिंग योर ओन एसेट्स एंड इक्विटी. एसेट्स एंड इक्विटी, जो भी आप कंपनी सेटअप कर रहे हैं, स्टार्टअप सेटअप कर रहे हैं, इन दैट केस जो भी whatever is that will be your own, और वो कभी भी आप कैसे भी आप उसको यूज कर सकते हैं. Create value for people and opportunity to help others. Certainly it's a very important aspect, क्योंकि आज की डेट में हम अपनी कंट्री को लें या इवन बाहर को भी लेते हैं, the way population is increasing and the employment is decreasing. In that context, I think it is very important to be a person जो कि employment provider हो, एम्प्लॉयमेंट देने वाला हो. आपका अपना एम्प्लॉयमेंट तो होगा ही होगा, बट यू विल बी ए गुड एम्प्लॉयर ऑल्सो. इन दैट केस बहुत लोगों को आप नौकरी देंगे. सो
आप उनको नौकरी देंगे, उनको अलग तरीके का एनवायरनमेंट देंगे, अलग तरीके की फैसिलिटीज देंगे, अलग तरीके की ट्रेनिंग देंगे, दैट वे यू विल बी एबल टू क्रिएट वैल्यूज ऑल्सो। आप देखिए कि बहुत सारी जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टाटा ग्रुप के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी एक अलग वैल्यू कल्चर है। दूसरे ग्रुप की अगर बात करते हैं उनका अलग वैल्यू कल्चर है। तो दैट क्रिएटिंग ए वैल्यू कल्चर अमॉन्ग द पीपल, दैट विल बी इन योर हैंड्स। अगर आप चाहते हैं कि लोगों के अंदर एक इस तरीके का एक एक जो वैल्यूज पैदा हो जाए। आप देखिए, हम बात करते हैं कि अगर एयर इंडिया में अगर हम जाते हैं तो एयर इंडिया के जो एयर होस्टेस हैं वो हमेशा झुक करके प्रणाम करते हैं आपको हाथ जोड़कर। दैट इज अ वैल्यू कल्चर, क्योंकि एयर इंडिया ने उस तरीके का वैल्यू कल्चर क्रिएट किया। जो भी उसको रन कर रहा है, जो भी उसको मैनेज कर रहा है, उन्होंने उस तरीके का एक अपना डिसाइड किया, यस आई वांट टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ कल्चर for my employees and for the people, for the customer. That will be in your hands. You have no other choice. बेसिकली ये क्या है कि अगर आपको लग रहा है कि मेरी कहीं नौकरी नहीं लग रही है और मैं पढ़ाई नहीं कर पा, You're not audible. Sir, you are not audible. There is some network problem. Please be patient. entrepreneurship will be for you. Opportunity to innovate as per the needs and consumer preferences. If you have that kind of mindset, जिसमें कि आपके अंदर एक हमेशा नया सोचने का, लोगों की जरूरतों को सोचने का, उनके लिए सॉल्यूशन निकालने का एक माइंडसेट है, सोच है, then certainly you should think towards being entrepreneurs. गवर्नमेंट पॉलिसीज टू प्रमोट, और ये और बहुत अच्छी बात है कि आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज आल्सो प्रमोटिंग इनोवेशन, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसलिए अगर आपके माइंड में इस तरीके का एक कोई विचार आ रहा है, यू वांट टू बिकम योर ओन बॉस, यू वांट टू क्रिएट that possibilities for other people, you want to challenge yourself, then certainly it is you are the fit person to be entrepreneur। और अगर ऐसा है तो आप जरूर सोचिए। टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप मैं एक क्विकली टच करूंगा इनको। जैसे एक तो बहुत सिंपल है, स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। बहुत एक छोटे लेवल पे अगर आप एक बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, they run or own their own businesses and hire family members and local employees। normally ऐसा एक छोटे से लेवल का एक कोई आप बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ में अगेन आई वुड लाइक टू हाईलाइट हियर, एंटरप्रेन्योरशिप और एक स्मॉल बिजनेस ओनली, उनमें डिफरेंस है। आपका एंटरप्रेन्योरशिप में देयर इज समथिंग यूनिकनेस विच नॉर्मली बाकी की जो आपके आसपास में जो 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 शॉप्स हैं या इस तरीके के बिजनेस हैं उनसे वो डिफरेंट है। their profit would be able to take care of their family। normally अपने अपने घर परिवार को चलाने के लिए हम ऐसा काम करते हैं। they fund their businesses by taking small business loans or loans from friends and family। government facilities are also there। लेकिन एक मैं बात यहाँ आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, if you are thinking to be a successful or a big entrepreneur, then it will be good to start with a small business।
Participants, please wait for a while. OP sir, you are not audible. फैसिलिटीज दे रहे हैं. Yes, sir. Yes, sir. Now you are audible. कंसल्टेंट्स, कारपेंटर में भी एक तो बहुत नॉर्मल है जो आपको कहीं मिलेगा कि आप जैसा कहे उस तरीके से उसने कहा, लेकिन एक दूसरा कारपेंटर ऐसा है जिसमें बहुत प्रोफेशनल तरीके से आपको सर्विस दे रहा है, प्रोफेशनल तरीके से बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, आपकी नीड के हिसाब से उस सब कुछ आपको करके देने की कोशिश कर रहा है. दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर. और अगर आज की डेट में एक ऐसा इनिशिएटिव आप लेते हैं जिसमें एक सेटअप करते हैं एंड टुमारो यू हैव दैट माइंडसेट, मुझको कल को मुझे 1 से 2, 2 से 20 और 20 से 200 या 2000 तक बनाना है, then certainly you are entrepreneur, और आपको you can become a bigger entrepreneur also. In that case, the entrepreneur, whatever you are thinking, that should be scalable. और ये स्टार्टअप और जो बड़े एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके केस में ये कंपोनेंट बहुत इनहेरेंट होना चाहिए. इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कि उनके अंदर आपको ये पहले दिन से सोच के चलना है कि इसको नॉट ओनली वन शॉप आई हैव टू क्रिएट अ चेन ऑफ सच काइंड ऑफ सेटअप्स. अगर ऐसा है आपके अंदर, then that can be a bigger or successful entrepreneur. That we call a scalable startup entrepreneur. In that case, basically the things are, आपको पहले एक बहुत लेवल पे स्टडी करनी पड़ेगी, मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा, लोगों की नीड्स का असेसमेंट करना होगा, और फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्लान बनाने पड़ेंगे. हो सकता है इन्वेस्टर्स को भी आपको देखना पड़ेगा, हु कैन इन्वेस्ट, बिकॉज दैट रिक्वायर मोर फंडिंग. और मोर फंडिंग के लिए then you will have to think of investors or the fund providers. They hire best and the brightest employees, क्योंकि अगर आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते जाना है तो आपको कुछ न कुछ ऐसे लोगों को लेना होगा जो दूसरी कंपनी में बहुत अच्छा काम कर रहा है, and you hire that person and then that experience and the knowledge that will help your enterprise to go further. टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में एक नेक्स्ट जो थर्ड है वो कहते हैं लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप. तो एक तो ऐसा आ गया स्मॉल था लेकिन दैट वाज स्केलेबल. सेकंड, थर्ड इज अ लार्ज कंपनी. राइट फ्रॉम द बिगिनिंग यू आर थिंकिंग ऑफ समथिंग जो बहुत बड़ा एक सेटअप बनाना चाहते हैं. दीज आर ह्यूज कंपनीज हैविंग ए डिफाइंड लाइफ साइकिल. दे ग्रो एंड सस्टेन बाय ऑफरिंग न्यू एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, technological interventions, customers preferences and new competition etc. They are basically, they take care of all those things. टेक्नोलॉजी बिना ऐप के, बिना टेक्नोलॉजी के वो आगे नहीं चलना चाहेंगे. वो चाहेंगे कि टेक्नोलॉजी है, एक बहुत अच्छा मोबाइल ऐप है through which they could reach to the maximum number of customers or users. So that is a large company entrepreneur. Innovation is the key for sustenance of such company. ऐसे केसेस में आपका बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपने एक इनिशियली इन्वेस्ट करके या फंडिंग लेकर के इफ यू आर सेटअप एक लार्ज कंपनी, लेकिन इफ यू आर नॉट इनोवेटिंग ऑन डे टू डे बेसिस, इनोवेशन इन टर्म्स ऑफ सपोज आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं और प्रोडक्ट आपने आज की डेट में बना दिया, दैट इज द नीड ऑफ द पीपल, बट टुमारो इफ द नीड इज चेंजिंग, द पीपल्स डिमांड इज डिफरेंट, then you will have to innovate that, you will have to modify that product. Not only that, the way you are making that product available to them, कैसे उनके पास डिलीवर कर रहे हैं, वो आज अगर आपने कोई एक फॉर्मेट बना है लेकिन कल को अगर उनकी नीड और कुछ और जरूरतें अलग तरीके से होती हैं तो आपको अपनी सर्विस में भी इनोवेशन की जरूरत पड़ेगी. एवरी टाइम यू विल हैव टू बी इनोवेटिव इन दैट कॉन्टेक्स्ट. एक फोर्थ कैटेगरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज की कॉन्टेक्स्ट में, जो हम लोग बात करते हैं, चाहे वो एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं या सोसाइटी की बात कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो सोसाइटी से रिलेटेड है. इफ योर बिजनेस इज फोकसिंग ऑन सोशल इश्यूज, सोशल प्रॉब्लम्स, then it will come under the social entrepreneurship. They are aimed at working of society and not making a profit. Basically इनका पर्पस क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि हम बहुत प्रॉफिट करें, लेकिन बिजनेस है तो प्रॉफिट तो जरूरी है, बट मोर ऑफ देयर फोकस इज ऑन towards helping the society, towards helping the people. अब after talking lot about the innovation entrepreneurship, मैं आपके साथ में ये बात करना चाहूँगा कि what are the characteristics of an entrepreneur. जैसे मैंने कहा कि ability to take risk.
अगर आप रिस्क ले सकते हैं, रिस्क का मतलब कभी हो सकता है नुकसान भी हो सकता है व्हेन यू आर डूइंग ए बिजनेस और एंटरप्रेन्योर, दैट व्हाट विल हैपन, कहीं ऐसा ना हो कि आप घबरा जाएं, अब क्या करें कैसे करें, तो वो एक आपके अंदर पेशेंस, करेज और उस तरीके का रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत जरूरी है। इनोवेटिव माइंडसेट, यस, एज आई डिस्कस राइट नाउ, कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और उसमें आपने आज सोचा और उसी के हिसाब से आप एक घिसे पिटे रास्ते पर चलते जा रहे हैं, देन आई थिंक मे नॉट बी ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। आपको एवरी मोमेंट, every day you will have to be innovative in terms of whatever you are doing, how you are providing, how to make it a cost effective, how to make it environment friendly, because needs are different. आज हम बात करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं। अगर आपने कोई इस तरीके का प्रोडक्ट बना दिया, कोई भी इस तरीके का एंटरप्राइज कर दिया which is against the sustainable development goals, then tomorrow people will start raising questions, तो हो सकता है आपको कंपनी बंद भी करनी पड़ेगी। तो there will be two possibilities only, either you innovate, modify your product or the service, or you stop। तो आपको इनोवेटिव माइंडसेट का होना ही पड़ेगा एवरी टाइम। विजनरी बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आज आपने कोई बिजनेस स्टार्ट की है और पता चला कि कल जो होगा देखा जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको कल का और कल का ही नहीं, बहुत आगे तक का सोचना पड़ेगा। टुडे आई एम मेकिंग दिस मच इन्वेस्टमेंट, इससे मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, कितना लोगों को फायदा होगा, मेरी कंपनी की पॉसिबल जो लेवल है कहाँ तक क्या होगा। So that kind of vision should be in your mind. You should be able to think of future. What are the things going to happen in the future? And accordingly, you will take action also. Okay. So these are the some characteristics of an entrepreneur. Some more are there, like leadership. Yes, leadership. अगर आप अपना business कर रहे हैं, then also leadership is very important. लेकिन अगर आप कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी ऑफिशियल कैपेसिटी में, then also leadership is required. So entrepreneurial skills is a very important there also, in business as well as in your job. Open-minded. People should be able to think or should be able to digest the criticism also. अगर आपके एम्प्लॉय हैं, अगर आपके जो कस्टमर्स हैं, they are criticizing your product, criticizing your service, then you should be open-minded to accept those. उसको एक्सेप्ट करिए और सोचिए कि आखिर क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्या कमी है। इसका मतलब मेरे अंदर दो, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, या तो कहीं वो किसी वजह से दे आर अंडर फोर्स बाय सम ऑफ योर कंपटीटर, अदरवाइज क्या होगा, दे आर नॉट हैप्पी विद योर प्रोडक्ट। तो इन दैट केस यू शुड एक्सेप्ट देयर क्रिटिसिज्म। इवन योर एम्प्लॉइज, if your employees are not satisfied or they are giving some suggestion to you, then you should be open-minded to accept their suggestion and take the best one to solve them. That's why this convert those challenges into opportunities. Flexible, yes, it is very important, क्योंकि जब तक आप एकदम बहुत rigid तरीके से बॉस तो हो गए, लेकिन बॉस not of that kind of हिटलर सा ही आप चला रहे हैं, डिक्टेटरशिप है, जो whatever I am saying that is the right, no, then in that case you cannot be a successful entrepreneur. So to be successful entrepreneur, you should be flexible in all ways. Like अगर आपके एम्प्लॉइज के सजेशन हैं, प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना है, भेजना है, कोई कुछ और कह रहा है, इस पैसे नहीं ऐसे करना है, then flexibility should be there to make the changes in your strategy, to make the changes in your the way you are delivering it. Know your product. Yes, it is also very important, चाहे वो प्रोडक्ट हो या सर्विस हो। एक बार आपने स्टार्ट करके उसको ऑफर करना शुरू कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि बस दैट इज द एंड पॉइंट। यू शुड कीप ऑन वाचिंग योर प्रोडक्ट टाइम टू टाइम, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है, लोगों को कैसा लग रहा है। इसलिए जब एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो पहले हम मार्केट रिसर्च की बात करते हैं, मार्केट सर्वे की बात करते हैं, but that should not be only before starting your business. It should be a continuous process also. Feedback लेते रहने चाहिए। उसके केस में क्या होगा, आपको feedback on your product, feedback on your service. In that case, you will be able to improvise it. You will be able to make it a more customer friendly. So these are few characteristics of entrepreneur. After discussing these all, अगर आप देखिए कि एक entrepreneur आपको बनना है, तो what should be there? There should be an opportunity.
अपॉर्चुनिटी कैसे हो सकता है कि या अपॉर्चुनिटी आने के लिए या तो यह है कि लोगों की डिमांड आ रही है, पीपल आर डिमांडिंग फॉर ए सर्टेन काइंड ऑफ प्रोडक्ट, सर्टेन काइंड ऑफ सर्विस, दैट इज अ वन थिंग। और यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ समथिंग, नहीं हो सकता है कि ये लोग पसंद करेंगे, मैं अगर ऐसा चीज करता हूँ, ऐसी बिजनेस करता हूँ, पीपल विल लाइक इट, देन दैट इज एन अपॉर्चुनिटी। सो यू ऑलवेज look for the opportunities, opportunities to create values through innovation। अगर आपको लग रहा है कि सपोज कोई जैसे हम एक साबुन की बात करते हैं, साबुन बहुत सारी वैरायटीज के हैं, लेकिन उन वैरायटीज के साबुन में आप देखेंगे कोई साबुन कोई उसमें फ्रेग्रेंस है, किसी में किसी तरीके का और कोई क्वालिटी है, करेक्टरिस्टिक है। Why people are making that kind of changes? In some case उसने एक ऐसा एक सैंडल या हम कहेंगे कि चंदन की खुशबू वाला एक साबुन तैयार कर दिया जो आपके बाथरूम में रखा रहेगा, और आप अगर जैसे जाते हैं तो बजाय किसी रूम फ्रेशनर की उसी की एक फ्रेशनेस आ रही है। तो लोगों ने इस तरीके के सोचा, तो व्हाट हैपेंड, वो दैट वाज ए एडिशन ऑफ वैल्यू टू दैट सोप, समवन डिड इट एंड देन दे थॉट ये बिजनेस मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। So that is an opportunity, is the one aspect of that. अब उस अपॉर्चुनिटी को सोचने के बाद में you will have to think of a business model also। आपने सोच लिया कि मैं इस तरीके के प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ, लेकिन वो कैसे बनाना है, कहाँ से उसके लिए रिसोर्सेज आएंगे, कहाँ से पैसा आएगा, जो पैसा लगाऊंगा उसको कैसे मैं जनरेट करूंगा, रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करूंगा, लोगों के साथ कैसे मार्केटिंग करूंगा, हाउ विल आई टेक फीडबैक फ्रॉम दोज ऑल पीपल। तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ बिजनेस मॉडल जो आपको एक तैयार करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में कि अगर इफ यू आर हैविंग सम आइडिया एक अपना बिजनेस करने का या स्टार्टअप करने का, देन हाउ टू प्रिपेयर ए बिजनेस मॉडल, बिजनेस प्लान, दैट्स ए बिग थिंग, बट दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ बीइंग एंटरप्रेन्योर। एंड देन उसके बाद में जो आपने बिजनेस मॉडल में जो सोचा है उसको एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कैसे कन्वर्ट करें, उसको एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी या इस तरीके का सेटअप कैसे बनाएं जिसमें कि बहुत सारे एम्प्लॉइज हो, बहुत सारा सामान हो, फैक्ट्री की मशीन हो, फर्नीचर हो, टेलीफोन और ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो, तो वो आपको क्रिएट करना है। So to be an entrepreneur, basically look for the opportunities, prepare a business model based on that पूरा planning, then convert that into an organization। वो ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, पहला आपका स्टेज होगा जो एक बहुत प्रोटोटाइप में छोटे लेवल पर आपने बनाया। तो ये एक इन नटसेट आई वांटेड टू शेयर विद यू, एक एंटरप्रेन्योर बनना है तो ये सब चीजें हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपसे शेयर करता रहा हूँ बीच बीच में, इनोवेशन इज बेसिकली की फॉर सक्सेस इन एंटरप्रेन्योरशिप। इनोवेशन मैंने बताया कि चाहे आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट बिजनेस का आपका आइडिया आया, आप प्रोडक्ट बना भी लिया, उसको आपको मार्केट में लेके गए, तभी भी देन यू विल हैव टू बी वेरी इनोवेटिव एट ऑल स्टेजेस। ये जो एस्पेक्ट्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, देयर इज अ चेन लाइक क्रिएटिविटी, थिंकिंग न्यू थिंग्स, डूइंग न्यू थिंग्स। आपके बहुत अच्छा दिमाग में आइडिया आ गया ऐसा हमें करना, लेकिन उसको एक मूर्त रूप में लाना, एक इस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना, दैट डूइंग थिंग्स इन इनोवेटिव वे, and then to convert that into a business or to commercialize that। This is basically the three step हम कह सकते हैं। एक बहुत ब्रीफ में क्रिएटिव हुई है, आप उसको इनोवेटिव प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में कन्वर्ट करिए एंड देन स्टार्ट योर बिजनेस। यही एक दूसरे एक अगर हम से देखना चाहते हैं कि इनोवेशन, और चूंकि आज की डेट में टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपके whatever business you are doing, you want to reach out to maximum number of people, तो उसको पहुंचने का सबसे बेस्ट तरीका है टेक्नोलॉजी और डिजिटल वे। तो आज की डेट में इनोवेशन, डिजिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये तीनों मिला करके आप अगर करते हैं कि कोई इस तरीके का स्टार्टअप या सेटअप करते हैं, बिजनेस करते हैं, there are more chances of being successful in these cases। ये like a business model, उसमें वैल्यू एडिशन एंड क्रिएटिंग वैल्यू फ्रॉम टाइम टू टाइम, दीज आर द एस्पेक्ट्स व्हिच वी कीप ऑन डूइंग। ये दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है, देन यू विल हैव टू बी इनोवेटिव एट ऑल टाइम। टाइम कितना होगा मुझे थोड़ा बता दीजिए बीच में, बिकॉज डॉक्टर प्रेम सिंह जी जस्ट
alert me how much time I have to present my views. सर अभी आपको कितना टाइम लगेगा? नहीं, मैं तो बोलता रहूंगा, लेकिन आप अपना टाइम बता दीजिए, उसी हिसाब से सर I'll आप find out. देख लीजिए कि बेस्ट टाइम में जितना आप ठीक है, दैट थैंक यू. अभी चूंकि एंटरप्रेन्योरशिप, उसके बाद में आई टॉक्ड अबाउट द इनोवेशन, और इनोवेशन की जब हम बात करते हैं कि यू कैन सी देयर आर सर्टेन टर्म्स लाइक डिस्कवरी, इन्वेंशन, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी. बहुत नॉर्मली हम सुनते हैं, और कई बार हम ये देखते हैं कि कोई कोई इन्वेंशन हो गया, क्या ये इनोवेशन है? कोई हमने कोई क्रिएटिव काम कर लिया, क्या ये इनोवेशन है? तो दीज आर वेरी कंफ्यूजिंग थिंग्स नॉर्मली. तो लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दिस. ये बहुत जरूरी है समझने के लिए जब आप एक डायरेक्शन में जा रहे हैं. पहली चीज है व्हाट इज डिस्कवरी. तो मैं जानना चाहता हूँ अपने जो ऑडियंस हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, आपके हिसाब से व्हाट इज डिस्कवरी? कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ डिस्कवरी? चैट बॉक्स में आप लिखिएगा, तो मैं भी उसको देखने की कोशिश करूंगा. डिस्कवरी से क्या मतलब है आपका? आप कुछ लिख रहे हैं चैट में? I'll be happy to see if you write something in chat box. Example of discovery. No. क्या पार्टिसिपेंट सुन भी रहे हैं कि नहीं मुझे? Okay. Bringing some new thing into light and knowledge of people. Okay, that's fine. And then anybody else? This is basically knowing about something or a process already existing in nature. Someone has written bringing to the knowledge of the people. Knowing about something which was already exist. We did not just did it at our own. It was already existing, but someone discovered it. It was not known to the people before. So what could be the example of that? Can you write the example of discovery in chat box? If you write, then okay. You see, this is a very famous example. Apple, falling of apple, gravity, discovery of laws of discovery, Newton's laws, and these all things. This was basically something which was already existing, but in the form of this law, it was discovered. Similarly, you can see the example of Archimedes' principle. What he observed or noticed is not the first time. Someone might have seen that, but did not notice it. What he observed in the form, and then he gave Archimedes' principle. So the floating of bodies in the fluid or liquids. You can think of some more example in that case. Discovery of water on moon. Yes, if it exists there and then someone have discovered, then it is certainly a discovery. Then now I come to the new term, that is the invention. Can you think of what is invention? Invention is producing a new thing first time. You see the difference? In case of discovery, it was already existing, but someone noticed it. It was not known to the people before. But in case of invention, this was not existing earlier, but someone invented it or produced this thing. That is the invention. Can you think of some example? Solar cell. Yes, that is the invention. This telephone, first time, that was the invention. Aeroplane, yes. Car, and this then now I'll come to the term creativity. Creativity, can you think of some what is that creativity? Because we have talked about the discovery, invention, and innovation also. Lot I have talked, but what is this creativity? I'll tell you. Creativity is basically something doing imaginative and then making some change in design and something like that. Creativity is related to imagination. You imagine of something like
ये ऐसी हो सकती है, इसको ऐसे करेंगे तो अच्छा लगेगा. That is basically the creativity. But innovation is certainly something what you thought of कि ये ऐसा होगा तो अच्छा रहेगा. But if you are converting that into some physical thing or which is visible or which can be noticed, then that is the innovation basically. For example, you see, this is a cup and plate, and what kind of design and creativity one has done in this case. Same thing is a very normal, we normally use in our homes. That is also a teacup, but this is a very creatively designed. So here one has done creativity. Simply you can see this car also. This is the design of that car, design of the shape, design of the way it is moving. That is the creativity. You can think of this was the bulb earlier, but now this is something differently designed. Creativity is there. So that is the example of creativity. Let me quickly browse through the things like invention and innovation. You can see the example. This is basically the invention, and then gradual improvement was there. Thoda modification ho gaya. Demand was there. Some problems were there. So now today we have a LED. So this is basically the invention, and now this is the category of innovation. और ये भी innovation कैसा है? This we call the incremental innovation. धीरे धीरे उसमें सुधार होता गया, and then that is the innovation. You can see the example of wheel also. First time it was thought of in this form, and then later on it was thought in this. Now many other designs are there. Today we are having a tireless, tubeless tires also, wheels also. Different functions are there, different utilities are there, and the innovations are being done in that case. So this is basically the example from invention to innovation. Similarly, you can see the example of mobile phone. The first you can think this was the invention, and then now in this case you can find the smartphones, variety of smartphones with having different features and functions that is being done. So what we can say, innovation is basically we saw discovery, invention and creativity, and got some idea about the innovation also. So innovation is basically doing something new, different and smarter or better. That leads to positive difference. Positive difference I want to highlight here because someone may create something very unique, which is a unique and innovative, you can say, but that is a destroying something, maybe a weapon or something. We'll not call it innovation. So, or some already existing thing is there. If you are adding value to that, then it is the innovation. And here you can see this something I said. Something can be a product, like which you can see physically. जैसे मैंने एक मग का एग्जांपल दिया, या और कोई भी हम इस तरीके की चीजें देखते हैं. प्रोसेस हो सकता है किसी चीज को जनरेट करने का, प्रोडक्शन का. जैसे अगर हम बात करते हैं आलू, पोटैटो, उससे चिप्स बनाने के लिए किसी ने एक प्रोसेस लिया. चिप्स बनाना, that is something that will come in the category of innovative product. But if the process of that someone is having some new process, that will be the process innovation. ऐसे सर्विस के केस में भी अगर हम देखते हैं, in case of service also I will give some example of service innovation. And in addition to these three categories, product innovation, process innovation and service innovation, मैं आपके साथ ये बताना चाहता हूँ कि there are many things जो हम innovatively करते हैं, देखते हैं, सोचते हैं. If I categorize them into three categories, तो मैं यहाँ कहता हूँ innovative ideas or innovative mindset. That is the very important thing. Or thinking differently or innovatively. अगर हम कहीं innovation entrepreneurship में जाना चाहते हैं, तो these are the first thing. Innovative use of something already existing. आप देखिए कि हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आ गई सडनली. आप छाता लेके बारिश में जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, और वहीं पता चला कि कोई इस तरीके का कोई क्रिएचर है, एनिमल है या छोटा मैं कहूँगा कि रेप्टाइल है, जो आपके रास्ते में आ गया. व्हाट विल यू डू? छाता का यूज करेंगे टू गेट रिड ऑफ दैट क्रिएचर, और उससे अलग
बचने के लिए, आप उसको दूर फेंकने के लिए किसी तरीके से। तो दैट इज द इनोवेटिव यूज ऑफ समथिंग एग्जिस्टिंग। एंड थर्ड थिंग इज द इनोवेशन इटसेल्फ। आपने कोई चीज, इन पहले केसेस में कोई चीज जनरेट नहीं की है, कोई प्रोड्यूस नहीं किया है, यहाँ पहला माइंडसेट आपका इनोवेटिव है। दूसरे केस में आपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीजों को इनोवेटिव तरीके से यूज किया है। लेकिन थर्ड केस में आप क्या कर रहे हैं, वहां पे एक इनोवेशन कर रहे हैं। यू आर एक्चुअली डूइंग समथिंग डिफरेंट एंड जनरेटिंग और क्रिएटिंग समथिंग। वो जो समथिंग मैंने कहा मे बी प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विस। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। इनोवेशन कैन बी solution to the existing problem. Innovation can be identifying or finding solution to something new in a new approach way. Product innovation का example मैं आपके साथ में यहाँ देना चाह रहा हूँ। A new or improvised product with value addition to meet changing needs. This is the example of product innovation, and I would like to request you all to kindly write the example of product innovation, जिसको हम कहें कि ये innovation है लेकिन product category क्या है। Can you write some example before I give you some examples? Can you think of some innovative examples of product innovation? Okay, I think you see this cup. This is a normal cup जो हम घर में यूज करते हैं। लेकिन someone thought of जब हम आजकल देखते हैं कि शुगर, उसके साथ शुगर क्यूब सेपरेट रखते हैं, एक उसको चलाने के लिए हमें स्पून की जरूरत पड़ती है। someone thought कि क्यों ना हम इसमें एक ऐसा चेंज करते हैं, एक वैल्यू एडिशन करते हैं, इट कैन हैव अ प्लेस फॉर द स्पून आल्सो। तो ये एक इनोवेशन है, इट्स अ वैल्यू एडिशन इन दैट। And if you see this, this is again a value addition for keeping the biscuits also along with the tea. Similarly, you see these two products. These both products are serving the same purpose, adding the same kind of value, but difference is there in design. The creativity you can see in these two products. Okay. Similarly, example you can see the example of this plastic cup you can see for using water or some other liquids. Someone thought there is a problem, इसको होल्ड करने में ये दब जाता है या कोई और प्रॉब्लम है। then thought of एक साथ में प्रॉब्लम थी कि this was not eco friendly, environment के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। so someone thought कि स्टेबिलिटी भी ज्यादा हो और इको फ्रेंडली भी हो, तो started using this with some other material. then again there was a problem, so thought of making this cup with the help of पेपर कप बनाया, पेपर कप, एंड दैट टू विद सम काइंड ऑफ डिजाइन। तो ये दीज आर दी इंक्रीमेंटल इनोवेशन, वैल्यू एडिशन इन दी प्रोडक्ट्स। और आप इनमें से किसी को भी लेकर के अपना एंटरप्राइज डेवलप कर सकते हैं, स्टार्टअप कर सकते हैं, लोगों ने किए हुए हैं। लेकिन फिर देखा कि अगर हम इसमें कोई लिक्विड लेके जा रहे हैं तो देयर आर चांसेस ऑफ वो स्पिल आउट होकर फैल जाए उसमें से। तो क्या करेंगे, उन्होंने उसके ऊपर एक ढक्कन देने की कोशिश की, एंड दिस इज अगेन एक काइंड ऑफ इनोवेशन। और इसको लेकर के अगर आप अपना कोई बिजनेस सेटअप करते हैं, एक स्टार्टअप सेटअप करते हैं, पीपल माइट हैव डन दैट। दैट इज बेसिकली फ्रॉम इनोवेशन टू स्टार्टअप। ये आइडियाज हैं, आइडियाज किसी ने एक प्रोटोटाइप बनाया, बट इफ यू स्टार्ट कन्वर्टिंग और प्रोड्यूसिंग ऑन अ कमर्शियल वे, देन दैट बिकम्स योर स्टार्टअप। एक एग्जांपल आप ये भी देखिए, एक पेन हम देखते हैं कि पेन एक सिंगल कलर पेन, वी हैव ब्लू कलर एंड इफ यू आर यूजिंग 3-4 कलर, तो आपके पास में ब्लू होगा, ब्लैक होगा, रेड होगा, 3 कलर यू कैन कीप इन योर पॉकेट। बट इफ यू वांट मल्टी कलर्स, दो someone like you might have thought कि क्यों ना मैं ऐसा कोई एक डिवाइस बनाता हूँ जिसका कि मल्टी कलर रिफिल भी उसी में हो। तो ये मल्टी कलर 3-4 का तो हमने देखा है, लेकिन यू कैन सी दीस आर द मल्टी कलर, और इसका मास स्केल पर प्रोडक्शन हो रहा है, पीपल आर यूजिंग इट, देन दैट बिकम्स एंटरप्राइज। इसी तरीके से प्रोसेस इनोवेशन की मैं बात कर रहा हूँ। एक न्यू प्रोसेस में एक नयापन आए, कोई चीज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैंने आपको चिप्स का एग्जांपल दिया। सम कंपनी माइट बी यूजिंग वन प्रोसेस, एक दूसरी कंपनी जो चिप प्रोडक्शन कर रही है, आप देखिए कि उसके चिप्स में बहुत अलग तरीके का टेस्ट होता है, क्रिस्पी होते हैं, लोग ज्यादा पसंद करते हैं। तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग इनोवेटिव, समथिंग न्यू इन दैट प्रोसेस ऑफ चिप प्रोडक्शन। सो दैट इज द प्रोडक्ट, द काइंड ऑफ प्रोसेस इनोवेशन। या उसको सेल करने का हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन का एक हो सकता है प्रोसेस। दीज आर ऑल द एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, आज हम और आप
बात कर रहे हैं, this is the example of a process of interaction with each other, taking the classes, taking the virtual classes. This is the process innovation. Similarly, e-learning की बहुत e-learning पहले भी था, लेकिन now it has become in a new and innovative way. People are offering the e-learning. Online examination has become a reality now, because neither government is allowing nor the parents are allowing students to go to schools or colleges to the examination centers. What is happening? Online. That is the process innovation. ऐसे ही अगर आप देखिए कि ई कॉमर्स का बहुत सारा प्रोसेस है, ई बैंकिंग है. रिसेंटली बिफोर यस्टरडे ओनली आई केम अक्रॉस विद दिस पॉलिसी बाजार मुझे इंश्योरेंस कराना था अपनी कार का, और ट्रूली ऑनलाइन इंश्योरेंस, दैट इज ए काइंड ऑफ सर्विस जो मैं आप आगे बात करूंगा, जिन्होंने ऑनलाइन इंश्योरेंस देने की एक सर्विस कर दी. आपको सर्विस दे रहे हैं घर बैठे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है. बट अगेन देयर वाज ए प्रॉब्लम. मेरी कार का इंश्योरेंस कुछ दिन पहले एक्सपायर हो गया. They wanted physically, नॉर्मली क्या होता था ऐसे केस में कि एक आदमी आएगा आपके घर में, आपकी कार का पूरी तरीके से इंस्पेक्शन करेगा, मुआयना करेगा, और वो अपनी रिपोर्ट देगा. उसके बाद में वो जो इंश्योरेंस कंपनी है, they will issue the insurance certificate. लेकिन now this company thought, नहीं ये तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, इसके केस में क्या किया जा सकता है. So there was a innovative way of inspection. This I call the process innovation. कि उन्होंने कहा कि 360 वीडियो आप एक दीजिए, उसका इंजन का, कार का, पूरा ये आइटम्स उसमें होने चाहिए, एंड विदाउट ब्रेक if you are sending on their app, then immediately within few minutes they will release you the policy. So this is the process innovation. Why this process innovation was thought? I'm talking about this one which recently I have noticed. क्योंकि लोग जा नहीं सकते, आने वाले के लिए टाइम चाहिए, और जब आपका काम वही काम दूर रहते हुए हो सकता है with the help of technology. So this is the example of process innovation. सर्विस इनोवेशन का भी क्विकली मैं आपको बता देता हूँ. उबर बहुत कॉमन है, हमें सर्विस लेनी है. दे आर प्रोवाइडिंग डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज. नीड नॉट टू डिस्कस हियर इन डिटेल. फ्री होम डिलीवरी, चाहे वो फूड्स की होम डिलीवरी हो, या आपके ग्रोसरी की हो, या आपके और कोई भी यूटेंसिल्स हो, या कोई भी आइटम हो घर से रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड, these all items are being delivered at home. This is the example of सर्विस इनोवेशन. आपके डिलीवरी ऑफ सर्विस में या प्रोडक्ट में इनोवेटिव वे किसी ने अगर किया है, दैट इज दिस इज दी वे. एग्जांपल, अगर आप कहीं किसी बड़े होटल में जाते हैं 5 स्टार में, तो वहाँ पे एक इस तरीके का डिवाइस आपको देते हैं. आप उससे टेम्परेचर कंट्रोल करिए, किसी को कॉल करना है वो करिए, आप लाइट को करिए, या आप किसी तरीके का और उसमें अरेंजमेंट है वो चेंज करने हैं, टेलीविजन का है. दीज ऑल आर बीइंग डन द टिप्स ऑफ योर फिंगर्स by the help of this kind of device. Jeep car is another kind of service जो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं हायर भी करते हैं. Wheels when you want them. This is example of service innovation. TripAdvisor, I give you an example of Make My Trip, TripAdvisor, and similar kind of other products or other services are there. They are providing you this service. Why we need innovation? आप इस सब कुछ जो मैंने डिस्कस किया उसके बाद में अब मैं आपको थोड़ा नटसेल में बताना चाहता हूँ. Why actually we need innovation? To find solution to the problem faced by the stakeholders. और क्योंकि जब हम इनोवेशन की बात करते हैं, हमेशा या तो होता है कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, जो आपके यूजर हैं, आपके जो कस्टमर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको कोई प्रॉब्लम है और आप उसका एक सॉल्यूशन नए तरीके से देना चाहते हैं, then certainly you will need an innovation. Meet the changing needs. जैसा अभी हमने पेंडेमिक के दौरान देखा, अभी कोविड पेंडेमिक में लोगों की जरूरतें बदल गई. लोगों को अलग अलग तरीके से घर में बैठे इस तरीके की प्रॉब्लम है, चाहे वो सब्जी की जरूरत हो, मास्क की जरूरत हो, सैनिटाइजर की जरूरत हो. चेंजिंग नीड्स हुई, और वो भी डाइवर्स ग्रुप, किसी की किसी तरीके से जरूरत है. तो इफ यू आर मीटिंग द नीड्स ऑफ द पीपल, चेंजिंग नीड्स ऑफ द पीपल, देन यू नीड इनोवेशन. टेक एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं, उनको यूज करके अगर आप नए तरीके का इनोवेशन करते हैं विच इज हेल्पफुल टू द पीपल, विच इज हेल्पफुल टू द सोसाइटी, देन यू नीड इनोवेशन. इनोवेटिव सॉल्यूशंस टू प्रोवाइड क्वालिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिव. बहुत देखते हैं बहुत सारे आइटम्स ऑलरेडी हैं हमारे पास, लेकिन उनकी इंप्रूव करना चाहते हैं आप क्वालिटी, उनकी कॉस्ट को कम करना चाहते हैं, देन व्हाट विल यू डू? You will find out some innovative solution in that case.
provide more effective and user friendly services. कई बार आपके पास में बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे उसी फील्ड की और दूसरी कोई सर्विस या प्रोडक्ट ऑलरेडी लोगों ने लॉन्च कर दिया. क्यों? Because they want to provide more effective and user friendly services or products. Improve the disappointing performance. अगर आप कोई कंपनी का किसी कोई प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, वो आपसे फीडबैक ले रहे हैं, then what will they will innovate further. They will improvise that. क्योंकि अब कहीं गैप एरियाज हैं, कहीं कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं है, to meet that they will improve. So for that purpose there is a need for innovation. Advantage of opportunities जो अभी हमने देखा है पेंडेमिक के दौरान people took advantage of, चाहे वो टीचिंग लर्निंग में हो या आपका होम सप्लाई में हो या PPE किट की फॉर्म में हो, whatever is there in all these format, this was the advantage of opportunities. And most important thing is, अगर आपने कोई अपना एंटरप्राइज डेवलप भी कर दिया, स्टार्टअप डेवलप भी कर दिया, then also to be in the market, to compete with your competitors, with your similar kind of businesses, आपको हर समय इनोवेटिव होना ही पड़ेगा. These are very important things. That's why you need to be an innovator. Yes, you can be innovator. अगर आप सोच रहे हैं कि अपने आसपास क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, लोगों की क्या जरूरत है, if you are sensitive towards them, then certainly you can be innovator. Look for the gap areas. अगर आपके पास कोई सर्विस है, कोई प्रोडक्ट है, किसी तरीके का कोई प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है, उसमें देखें इसमें क्या कमी है, उस कमी को दूर करते हुए आपको इनोवेशन कर सकते हैं. बी ए कीन ऑब्जर्वर. और इस सब के लिए कि आप अपने आसपास देख रहे हैं, कहीं रास्ते में जाते हुए कहीं भी कोई किस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, लोगों की जरूरत क्या है, तो अगर आपको उसको बहुत माइन्यूटली देख रहे हैं और उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस की तरफ सोच रहे हैं, देन यू कैन बी एन इनोवेटर. थिंक ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस. जैसे मैंने कहा कि अगर आप कोई आपके पास ऑलरेडी कोई आइटम है, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, इको फ्रेंडली बनाना चाहते हैं, उसको यूजर फ्रेंडली बनाना चाहते हैं, देन आई थिंक यू कैन थिंक ऑफ इनोवेटर. डू लॉट ऑफ आइडियाज. और अगर ये बहुत जरूरी है, इसके लिए अगर आपको इनोवेटर बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, तो आपके दिमाग में आइडियाज आते रहने चाहिए, अलग अलग नई तरीके की चीजें, कैसे इसको इम्प्रूव करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने पेरेंट्स के साथ में, टीचर्स के साथ में. कीप ऑन ब्रेनस्टॉर्मिंग, कीप ऑन डिस्कसिंग. डिस्कशन ब्रेनस्टॉर्मिंग से आइडिया रिफाइनमेंट होता है, पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन बढ़ती है. एंड देन नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन विद लाइक माइंडेड. ये मैं कॉलेज के लिए कहना चाहूंगा कि इफ यू कैन डू सम काइंड ऑफ प्रोवाइड सम काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म टू द स्टूडेंट्स, कि जहां वो अपने आइडियाज को डिस्कस कर सकें, उनके साथ में ब्रेनस्टॉर्म कर सकें, ऐसे लोगों को आकर के उनका प्रेजेंटेशन करा सकें, then I think that can help in further improving the possibility of idea generation and experimenting for betterment without bothering for the people and for the need. So in nutshell, I would like to conclude with these few things. अगर आपको इनोवेशन से एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना है, तो पहले आप प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करिए, बी सेंसिटिव टुवर्ड्स देम ऑलवेज, एंड बेस्ड ऑन देम आइडिया जनरेट करिए, कैसे हम क्या कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं. फिर उसके बेसिस पे आप प्रोटोटाइप, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं छोटे स्केल पे करिए, अगर आप इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो एक प्रोटोटाइप डेवलप करिए, एंड देन उसकी टेस्टिंग, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप कैसे उसको functional है, whether it is actually working, your idea is working or not. Then next important thing is how to market. Marketing is a part of that idea to entrepreneurship or innovation, and then commercialization. If you have done these all steps, then I think you can become. So these are few ideas for the entrepreneurship. E-commerce के सेक्टर में बहुत ज़्यादा entrepreneurship के पॉसिबिलिटीज हैं. फ्रीलांसर, राइटर, अकाउंटेंट, डिजाइनर, ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन कोर्स डेवलपमेंट आज की डेट में बहुत ज़्यादा डिमांड में है. दिस इज यू कैन बी ऐप डेवलपर, बिकॉज whosoever is doing startup or something, they always are looking for a good website developer or the app developer. सर्विस बेस्ड बिजनेस, बहुत फूड डिलीवरी की बात करें या क्लीनिंग की बात करें, इस तरीके के बहुत सारे हैं. Consultants for different field, people are looking for the consultant, maybe wedding planner, event manager, life coach, etc. And the rental, etc. also is very important. Apartment rental,
In case of business marketing business, also possibilities are there. Starting a YouTube channel, it has become a very common now. People are developing their ideas, their video programs, and then making them public through YouTube channel. They're earning lot. That it has become a very good field of entrepreneurship. Translator, yes, the government of India, after this NEP implementation, government is promoting education in different regional languages. Also, there is a lot of scope for translators in the field. Real estate is already there, photographer and stockbroker, tutor providing services, website flipper, online marketing, etc. These are few things which are very much important. So now finally I would like to say innovation is the specific instrument for entrepreneurship. Art that endows researches with a new capacity to create. Innovation and entrepreneurship will go hand in hand. This is the quote of Peter Drucker. He is a very renowned motivator, entrepreneur that has given a lot of thoughts in the field. So with that, thank you very much for this recent hearing. Then the Thank you very much, sir, for this enlightening talk. Dr. Aarti ma'am. Participants may please write your queries in the chat box. If you have any questions, you may please write in the chat box.
audible, sir? And sir, Girdhar sir, am I audible? Yes, ma'am. Yes, now audible. I think there is some technical issue in between. Yes. Actually, network was gone. So college ka Yeah, Wi-Fi. I Now I suppose. connected with hotspot of my mobile. I'm sorry for that. Thank you. So sorry, sir. Sorry, OP sir. So you told us very beautifully about the innovation and entrepreneurship, sir. So I would like to call Dr. Girdhar Gopal for the formal vote of thanks. Hello. Am I audible, ma'am? Yes, sir. Yes, sir. So, respected Dr. Ram Prakash Sharma, Director, National Center for Innovation in Distance Education, Indira Gandhi National Open University, New Delhi. Dr. Rajinder Singh, in absentia, Principal, Sanatan Dharma College, Ambala Kent. Dr. Prem Singh, Dr. Aarti, other colleagues, and dear participants. It's a matter of privilege for me that I have been asked to present a vote of thanks after such a wonderful talk. So on behalf of Sanatan Dharma College, Ambala Kent, and on my own behalf, I extend a very hearty vote of thanks to Dr. Om Prakash Sharma. I'm highly indebted to him for gracing this occasion with his valuable words. Sir, we know that while a student starting for a degree course, तो जो डाउट्स फॉर द डिग्री प्रोग्राम उसके दिल में होते हैं, फिर हम उसको बोलते हैं कि आप बेटा आपने इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाना है, देन अ लॉट ऑफ अदर डाउट्स विल कम and raise in their minds, because these are those kind of words which are generally associated with people say that here in degree colleges or in rural areas, how the students will do this, or generally the students are not able to quickly grasp the main things for the innovation and entrepreneurship. So the examples and the roadmap design, which have been elaborated by you in the talk, is very useful for them. And I hope all of them will have already enjoyed the session, as well as they will take a lot of takeaways from this session, so that it will guide them for that entrepreneurship and the ideas, whether it is a tea, coffee cup or coffee mug, or whether it is a full machine which is there in during COVID or after COVID. So depending on the situation, it should be there that you should design in a very separate manner. Beautifully explained by you, sir. We are very thankful for your time that you spent, you given us today for this session. I'm also highly indebted to Dr. Rajinder Singh, Principal, Sanatan Dharma College, Ambala Kent, for his continuous support, and he always encourages for the organizing these kind of talks, so that our students as well as our faculty members can be benefited from these. Also, I am indebted to the organizing team, Dr. Prem Singh, Convener, Institutions Innovation Council of Sanatan Dharma College, Ambala Kent, Dr. Aarti, Convener of Entrepreneurship Development Cell of Sanatan Dharma College, Ambala Kent, as well as other faculty members who are directly or indirectly associated in the organization of this event. Lastly, the event will not be able to complete without the students or without the participants. So I also want to place on record my thanks to the participants and my dear students. This lecture will highly useful for them for their encouragement towards the innovation and entrepreneurship, so that after the degree or during the degree also they will be able to think or design their own startups, innovations, or any idea which can in future turn into this kind of jargon. So once again, I'm on behalf of all organizing committee very highly thankful to Dr. Sharma sir for his continuous support. I remembered जब प्रेम सर ने discuss किया था that we will organize a talk on innovation and startup, and Prem sir instantly given a name that I will talk to Dr. Sharma from IGNOU, and if he
hopefully have time, then obviously he will be there with us and in near future for a tremendous session for this. Thank you, sir. Thank you for today's session. Thank you. To Dr. Girdhar ji. In fact, it's Ji, sir. my pleasure to be with all of you and share my thoughts. बहुत अच्छा लगा, लेकिन अच्छा ये नहीं लगा कि इंटरेक्शन नहीं हुआ, क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं हुए। वो होता अच्छा रहता अगर स्टूडेंट्स और फैकल्टी अगर So there बोलते is one question तो in the chat मेरे लिए box. लर्निंग हो If you जाती है। allow तो एक me. तरीके से इट हैज बिकम वन वे। मैं अलग गलत सही जो भी बोलता रहा, लेकिन जो बच्चों से सीखने को मिलता है, पार्टिसिपेंट से मिलता है, दैट इज एनरिचिंग फॉर ऑल ऑफ अस। जरूर सर, जरूर। वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ जैसे किसी ने पूछा है कि हाउ टू जनरेट, हाउ टू गेट आइडियाज फॉर ए पर्टिकुलर बिजनेस प्लान और समथिंग, बहुत मतलब बेसिक सी बात है। मेरे दिमाग में मुझे बिजनेसमैन बनना है या कुछ करना है, तो आइडिया कहाँ से आएगा? लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि आइडिया आपके दिमाग में होगा जरूर। आपने अगर किसी फील्ड में एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, बिजनेस करने के लिए सोचा है, तो वो बिजनेस देखिए दो पॉइंट से होती है। एक तो होता है पैसा कमाने के हिसाब से, कि मुझे केवल पैसा कमाना है तो कहीं से किसी में, वो ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आपकी एबिलिटी किस में है, आपकी कैपेबिलिटी किस में है, आपके पास रिसोर्सेज किस फील्ड में ज्यादा है, किस फील्ड में ज्यादा जरूरत है उसकी। कोई भी बिजनेस, मान लो मैं किसी एक फील्ड का बहुत एक्सपर्ट हूँ, लेकिन लोगों को जरूरत ही नहीं है उस फील्ड में बिजनेस की, वो भी फायदा नहीं है। मेरी एक्सपर्टाइज भी जरूरी है, मेरी कैपेबिलिटीज भी जरूरी है, रिसोर्सेज भी जरूरी है, और ये भी जरूरी है कि आपका वहाँ पैशन भी होना जरूरी है। आपका जब तक एक विलिंगनेस नहीं होगी, इंटरेस्ट नहीं होगा, तब तक आप उसमें नहीं करेंगे। आइडिया जनरेट करने के लिए तो मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एक गुरु मंत्र देता हूँ कि आप अभी मेरे साथ बात कर रहे हैं, यहाँ से बाहर जाएंगे, रास्ते में जाएंगे, घर में जाएंगे, या जहां भी आप जाते हैं, जस्ट कीप ऑन ऑब्जर्विंग व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। वहां देखेंगे ये क्या हो रहा है, इसका क्या सॉल्यूशन। मेरे सामने एक पंखा चल रहा है और मैं देखूं ये बड़ा आवाज कर रहा है, दूसरा पंखा नहीं चल रहा, ये पंखा आवाज चल रहा है, तो कैन आई थिंक ऑफ समथिंग जो कि उसकी आवाज को मैं कम कर दूं, या कैन आई थिंक ऑफ ए सॉल्यूशन जो कि वो आगे फ्यूचर में आवाज ही नहीं करे, कैसा पंखा मैं बनाऊं। ये आइडियाज जो होते हैं वो केवल ऑब्जर्वेशन से आते हैं। आप आसपास जो भी हो रहा है, अगर आपने कहीं देखा कोई रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया और वो पड़ा हुआ है आदमी, कोई उसको उठा नहीं रहा है, ये गाड़ी जा रही है, दूसरा बाइक वाला जा रहा है, बचा के जा रहे हैं, तो कैन यू थिंक ऑफ समथिंग। लोग बहुत सोच रहे हैं उस डायरेक्शन में कि इसको कैसे, ऐसे आदमी को इस केस में कहाँ पे कैसे सपोर्ट दी जा सकती है। वो एक इनोवेटिव आइडिया हो गया। कहीं आप देख रहे हैं कि बहुत सारे केसेस में आजकल हम रेनी सीजन है, बहुत जगह गड्ढे हो गए और वहां पर आपको पता ही नहीं चलता, पानी भरा हुआ और अचानक आपकी बाइक या वो गई और एक उछल के वो गिर गई, आपको पता ही नहीं है। तो कैन यू थिंक ऑफ सम सॉल्यूशन के आपको ऐसे गड्ढे को, इस तरीके के जो कहीं भी हो गए सड़क पे आसपास, उनको जस्ट टू आइडेंटिफाई एंड ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ द गवर्नमेंट और टू द अथॉरिटीज। कोई आप ऐप बना दें, कोई इस तरीके का एक नेटवर्क बनाएं आप उनके साथ में। आइडियाज की देयर इज नो डर्थ ऑफ आइडियाज, बस कीप ऑन ऑब्जर्विंग व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू एंड हाउ दोज थिंग्स कैन बी सॉल्व। अब सॉल्व करने के लिए जब आप एक आइडिया आपके सामने आ रहा है, मैं आपके थैंक्स के बाद में टाइम ले रहा हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। थैंक्स के बाद में नॉर्मली होता है कि कंक्लूड हो जाता है सेशन, बट चूंकि वो क्वेश्चन था तो आई कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ। जब हम ये बात करते हैं कि कोई भी आइडिया, कोई प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है, जब प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन भी एक आपके दिमाग में आता है। आप सोचेंगे उसको दोबारा, तो दूसरा सॉल्यूशन आपके दिमाग में आ जाए। फिर आप अगेन इफ यू थिंक इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव, तो यू विल कम विद अनदर सॉल्यूशन। आपके दिमाग में 3-4 आइडियाज आए। अगर उसी प्रॉब्लम को आप किसी दूसरे अपने फ्रेंड के साथ में, अपने टीचर के साथ डिस्कस करते हैं, तो उनके दिमाग में वो आइडिया आएगा जो आपने सोचा ही नहीं था। हो सकता है वो उसका एक ऑल टुगेदर डिफरेंट सॉल्यूशन सोच रहे हैं। अब आप सोचिए कि आपके उनके बाद साथ में ब्रेनस्टॉर्म आपने किया, डिस्कस किया, देन यू कम आउट विद ए मोर डूएबल सॉल्यूशन, कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन, जो आसानी से किया जा सकता हो। एक तो है कि मैं कहता हूँ कि मैं सीढ़ी बनाना चाहता हूँ चांद तक, सीढ़ी बनाना, वो भी मुझे चांद पे पहुंचना है, सीढ़ी बना के जाना है, वो भी एक सॉल्यूशन है। मेरे दिमाग में आया मुझे चांद पे पहुंचना है, वो एक प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन क्या है? एक सीढ़ी बनाओ वहां के लिए। लेकिन इज दैट सॉल्यूशन डूएबल? नहीं। फिर दूसरा क्या सोचा, नहीं सीढ़ी नहीं बनाओ, एक काम करो, कोई ऐसी चीज करते हैं जो यहाँ से फेंक के वहां दूर तक चली जाए, वो भी एक सॉल्यूशन है।
दूसरा सोचता नहीं भाई, हम तो हवाई जहाज जब ले जा सकते हैं तो उसकी तरह हम कोई एक ऐसा बनाए जो ज्यादा स्पीड से चलने वाला, तो रॉकेट की बात आ गई। फिर और कुछ सॉल्यूशन की बात आई। फिर उसमें ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं कि उसकी कॉस्ट कितनी होगी, कौन उसको फंडिंग करेगा, मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। आपके दिमाग में एक आइडिया आया, प्रॉब्लम आई, आइडिया आया, अब उसको आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप बैठे रहे कि मुझे कौन फंडिंग करेगा, कहाँ से पैसा आएगा, तब होगा, तो फिर आपका वो आइडिया भी बेकार गया। तो आपको क्या जरूरत है, आप सोचिए कि क्या मैं इसमें कुछ शुरुआत ऐसी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जो कि मुझे ज्यादा फंडिंग की नहीं हो, मैं अपने एक शुरुआत कर दूं, एक सक्सेसफुल मॉडल क्रिएट करके दिखा दूं लोगों के सामने, और फिर लोग देखेंगे अच्छा ये हो सकता है, तो इसका मतलब है कि ये इसको फंड किया जाए। आजकल जो जितने भी वेंचर कैपिटलिस्ट हैं या इन्वेस्टर्स हैं, वो यही देखते हैं आपका डिटर्मिनेशन कितना है, कमिटमेंट कितना है, प्रॉब्लम कैसी है, उसका सॉल्यूशन कितना आपका इफेक्टिव है, इम्प्लीमेंटेबल है, कितने लोग उससे जोड़ सकते हैं, कितने लोगों को फायदा मिलेगा। ये सारे एस्पेक्ट्स कोई भी फंडिंग वाला देखेगा। और आपने अगर अपने बलबूते पे अपनी फंडिंग लेकर के, अपने दोस्तों से, अपने फैमिली से लेकर के, इफ यू हैव डेवलप्ड सम प्रोटोटाइप, छोटे लेवल का कर दिया, तो आपको फंडिंग होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आसपास, अपने खुद की लाइफ में ये देखते रहिए, व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्यूशन आपका आया नहीं आया कोई बात नहीं, प्रॉब्लम आप नोटिस कर रहे हैं, तो एक आपने सीढ़ी पूरी कर ली, मान लीजिए आपका पहला स्टेप पक्का हो गया टू बी ए इनोवेटर एंटरप्रेन्योर। क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू आइडेंटिफाई ये प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने का बेस्ट तरीका है टू ऑब्जर्व द पीपल्स नीड, ऑब्जर्व द प्रॉब्लम्स अराउंड यू, challenges around you, challenges in your family, challenges with your friends, वो बहुत सारी चीजें उनको ऑब्जर्व करिए, नोटिस करिए, नोट करिए, और फिर सोचिए क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है, मैं क्या कर सकता हूँ, दो फ्रेंड की मदद से क्या कर सकता हूँ, तीन लोग मिलकर क्या कर सकता हूँ। आपके दिमाग में कोई सॉल्यूशन आया लेकिन आपको लग रहा है नहीं इसके लिए तो एक ऐप की जरूरत है, तो किसी अपने एक टीम में ऐड करिए। ऐसे भी जो जो ऐप बनाना जानता है, सॉल्यूशन आपके दिमाग में, ऐप उसके दिमाग में, मिलकर के एक टीम से आप एक वेंचर बनाएंगे, तो हो सकता है कि वो बहुत अच्छी बिजनेस भी बन जाए। ऐसे ही ये बहुत सारे, जैसे ओयो रूम का आप देखिए, अगर उसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं आप, तो वो क्या है, ही वाज ए गुड ट्रेवलर, ऑल ओवर वर्ल्ड कंट्री वो घूमता रहता था, जहां जा रहा था पता चल रहा है कि रुकने की जगह नहीं मिल रही है, कहीं उसे कहीं शेल्टर मिल गया कि उनके घर में रुक गया। फिर बात हुई कि नहीं, तो घर में रुक रहा है तो तुम्हारे घर में तो एक फैसिलिटी है, एक रूम है, क्यों ना इसमें कल को कोई दूसरा आदमी वो भी रुक जाए। तो जस्ट एन आइडिया क्लिक टू हिज माइंड, प्रॉब्लम वाज विद हिम, लेकिन जब उसको इस तरीके का कोई एक रास्ता मिला, देन ही थॉट ऑफ क्यों ना इसको ऐसे, इनकी तरह तो और बहुत सारे लोग होंगे। देन ही स्टार्टेड समथिंग सर्चिंग कि जो भी जिनके पास में 1 2 3 4 रूम है, वेल फर्निश्ड है, वो मेरे साथ कांटेक्ट करें, मेरा ऐप है ये, इस तरीके से है। और वो आज एक कितनी बड़ी सीरीज बन गई है, कितना बड़ा बिजनेस बन गया है। ये सारी चीजें, ऐसे ही आइडियाज आते हैं, ऐसी सॉल्यूशंस आते हैं। बस ये है कि आपका दिमाग उस तरीके का होना चाहिए कि यस, आई हैव टू डू समथिंग, आई हैव टू बी इनोवेटिव। आपका माइंड सेट इनोवेटिव हो। जब तक आपका माइंड सेट इनोवेटिव नहीं होगा, तब तक आप प्रॉब्लम्स को सेंस नहीं करेंगे, तब तक आप प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन नहीं सोच पाएंगे। उसको करने के लिए वो एक अलग चीज है, ठीक है। So with that, I would like to thank all of you, all the organizers and students and the faculty for giving me this opportunity to interact with you. Yes, please. सर एक्चुअली मैंने क्वेश्चन पूछा था, तो अब जैसे कोई आइडियाज हैं, अब हमें मेंटोर्स व नेटवर्क। ऋतिक 1 मिनट, सभी अपना कैमरा ऑन कर लो, वीडियो ऑन। ऋतिक आस्क। तो सर जैसे कि हमें मेंटोरशिप चाहिए कि अब एक आइडिया उसको डेवलप कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आप कर रहे हो, तो जैसे हमारा ग्रोसरी स्टोर है, अब उसको ऑनलाइन लेके जाना, तो उसको कैसे किया जाए, ये एक अपने आप में हुआ, तो इसमें गाइडेंस चाहिए। तो आपसे बता सकते हैं कि ऐसे हम गाइडेंस किससे ले, या मेंटोरशिप हम किसके साथ कर सकते हैं, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो क्या आप बता सकते हो कि हम आपके साथ कैसे गाइडेंस ले सकते हैं आपसे, कि नेटवर्किंग इज ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट, कुछ भी आप कर रहे हो, और स्पेशली इन बिजनेस। ऋतिक, ये बहुत अच्छी बात है, आप सोच रहे हैं इस डायरेक्शन में। मैं आपको 2 3 चीजें बताऊँ। एक तो पहला ये है कि आइडिया आपका, आप सोच रहे हैं कि ग्रोसरी स्टोर है और इसको मुझे ऑनलाइन ले जाना है। आप सोचिए कि ग्रोसरी स्टोर है ऑलरेडी, उसको ऑनलाइन ले जाना क्यों चाहते हैं आप?
ऑनलाइन तो ऑलरेडी है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ग्रोफर्स है, ये बहुत सारे ऑनलाइन है। आप क्यों ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं, पहले तो आप सोचिए। उसके ले जाने के लिए आपके पास में कोई ना कोई रीजन होना चाहिए। रीजन क्या होगा कि नहीं, ग्रोफर्स वाले में ये सर्विस नहीं है, वो इस तरीके की चीजें कस्टमर्स की सेटिस्फाई नहीं करता है। उसकी आप मतलब कमी देखो, उसके गैप एरियाज देखो, आप उनके गैप एरियाज देखोगे। मतलब पहले आपके पास जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि आप जस्ट करने के लिए करना है। आई थिंक वो बात ज्यादा ठीक नहीं रहेगी। आपको करना है ये बात ठीक है, लेकिन क्यों करना है उसका एक जस्टिफिकेशन हो कि क्योंकि मुझे कुछ नयापन करना है। उन जो भी एग्जिस्टिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनमें नंबर 1 ये कमी है, नंबर 2 ये कमी है, नंबर 3 ये है कि उसको मैं अपना एक नया वैल्यू एडिशन कर सकता हूँ। एक तो ये बात, ठीक है। अब आप अपने आइडिया को पहले खूब ब्रेनस्टॉर्म करिए अपने आप। जो सवाल बहुत सारे, क्यों करना चाहता हूँ, अगर करना चाहता हूँ तो ये कहाँ से मेरे पास पैसा आएगा, कहाँ से मैं कैसे रिसोर्स करूंगा, फिर कैसे करूंगा उसको, ऐप बनाऊंगा, ऑनलाइन बनाऊंगा, फिर स्टोर के तो ऐसे स्टोर्स हैं उन्होंने कैसे किया हुआ है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले उनके बिजनेस मॉडल को आपको पढ़ना पड़ेगा। उस तरीके की एक तो ये हो गया कि आपको अपने आइडिया खुद क्वेश्चन करिए। जो भी आ रहा है, जितना क्वेश्चन करोगे, जितना क्रिटिसाइज करोगे, उतना ही वो रिफाइनमेंट होगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग, सेल्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गई वो आपकी। फिर उसको दूसरे अपने जो दोस्तों के साथ होगी, देखो ये ग्रोफर वाला देता तो है लेकिन वो ऐसे ये कमी है उसमें, ये कुछ है, पहली क्वालिटी खराब है या उसकी सर्विस खराब है, या और ये है उसके यहाँ पे केवल वही चीज मिलती है जो मुझे नहीं चाहिए, वो नहीं मिलती है। मतलब बहुत सारी कमी, गैप एरियाज आइडेंटिफाई करोगे ना। दूसरा आप देखोगे लोगों की जो जरूरतें हैं, लोगों की जरूरतें हैं कुछ और, ग्रोफर उनको पूरा नहीं कर रहा है। तो वो कौन सी जरूरतें हैं जो आप करना चाहेंगे, ग्रोफर या अमेजोन या ये जो नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अभी भी जरूरत है लोगों की, तो यू आइडेंटिफाई दोस्त। आप अपने मॉडल में ये चीजें डालोगे ना, ये चीज डालोगे, फिर उसके बाद सोचोगे ये तो ये मुझे करना है। अब सवाल यह है कि उसको कैसे करना है। कैसे करने के लिए एक तो बहुत जरूरी है भाई कि मुझसे बात कर रहे हैं, अपने टीचर से बात कर रहे हैं, फ्रेंड से बात कर रहे हैं, लेकिन आज के समय में डिजिटल का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, बहुत सारी चीजें ऑनलाइन है। आप जरूर ऐसे लोगों की स्टोरी जरूर पढ़िए, सक्सेस स्टोरी, वो बहुत मोटिवेट करती है और उनसे आपको आइडियाज, उनका आइडिया के बारे में पता चलता है। इनफैक्ट आपको मैं फ्रेंकली बताऊं कि सब लोग अपना जो ओरिजिनल आइडिया उसको एकदम से रिवील भी नहीं करते हैं, बता भी नहीं है, लेकिन जो समझदार लोग हैं वो कुछ ना कुछ उसमें से निकाल लेते हैं, अपना बना लेते हैं। उसको अपना कैसे बना लेते हैं कि किसी का आइडिया है, जैसे मैंने कहा कि ट्यूबलेस या बिना हवा वाला आपको टायर चाहिए, वो कहीं चल रहा है। अभी कहीं मैंने देखा था, एक व्हाट्सएप पे का था, चाइना में बना है कि वो टायरलेस और उस तरीके का ऊंचे नीचे कहीं भी चला जाएगा, वो उस हिसाब से जर्क सेंड कर लेगा, ठीक है। लेकिन वो सोचा अब इंडिया में नहीं, ये तो इसमें ये कमियां हैं, तो यू थिंक ऑफ समथिंग व्हाट यू कैन डू, वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन क्या कर सकते हैं, ठीक है। एक तो मैंने बताया कि आप अपने आप को पूरा क्वेश्चन करिए, व्हाट वाई हाउ वाला। जब तक आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी नहीं होगी, अपने आप को क्रिटिसाइज करने की एबिलिटी नहीं होगी, तब तक आप अपने आइडिया को प्रॉपर तरीके से रिफाइन नहीं। दूसरा, अपने जो फ्रेंड्स हैं, और जैसे कॉलेज में भी हो सकता है आपके यहाँ आईआईसी है, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट सेल है, इनके साथ में जो जहाँ मीटिंग होती है उनके साथ ब्रेनस्टॉर्म करिए, डिस्कस करिए। और तीसरा, अपने जैसे भी आइडिया आता है, मैं आप सबको कह रहा हूँ जो भी मेरे साथ आज जुड़े हुए हैं, अपना एक आइडिया बैंक बनाइए, एक नोटबुक जरूर बनाइए जिसमें कि, क्योंकि हम लोगों के सबके कभी ना कभी आइडियाज आते हैं और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो ना हो लेकिन आइडिया जरूर आ जाए। कुछ भी है, जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि सबका वो टेक्नोलॉजी की वजह से वो डिस्कनेक्ट हो गए। मैं देख रहा हूँ कि कहाँ प्रेम सिंह जी की आवाज नहीं आ रही है, अलका जी की नहीं आ रही है, किसी की आवाज नहीं आ रही है, तो मैं ही अकेला बोलते जा रहा हूँ। दिस इज ए प्रॉब्लम। अगर आप इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, ऐप डेवलपमेंट में या टेक्नोलॉजी के फील्ड में, तो देखिए कि आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करिए जिसमें ये प्रॉब्लम ना आती है ना। आपको म्यूट, जैसे हम देख रहे थे कि पहले जूम में था या और गूगल मीट में है, कि आपने उनको फैसिलिटी दे रखी है कि वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं, लेकिन देखा किसी ने कि नहीं, वहां तो कोई भी म्यूट करके अपनी अनम्यूट करके और बीच में बोलने लगता है। तो एक इनोवेशन उसमें क्या डाला, नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर के होस्ट के हाथ में दे दिया कि वो चाहेंगे तो किसी को भी अनम्यूट कर सकते हैं, किसी को भी म्यूट कर सकते हैं। दैट वाज द नीड, दैट वाज द इनोवेशन, इनोवेटिव एंगल उसमें ऐड किया। तो आप ऐसी चीजों को पहले आइडेंटिफाई करिए,
डिस्कस करिए, स्टोरीज जो मोटिवेशनल स्टोरीज हैं सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की, इनोवेटर्स के, उनको पढ़िए, ठीक है। फिर उसको अपने छोटे लेवल पे लागू करने की कोशिश करिए। उसको बड़े लेवल पे ले जाने के लिए छोटे लेवल पे कहते हैं, जैसे प्रोटोटाइप कहते हैं। प्रोटोटाइप का मतलब बेसिकली मैं उसको बिजनेस में भी प्रोटोटाइप यही कहता हूँ। आपने सोचा उसको, सारा सब कुछ एलिमेंट वही है, लेकिन उसको छोटे लेवल पे कर रहे हैं। छोटे लेवल पे सक्सेसफुल है, अपने कम्युनिटी में, अपने मोहल्ले में, अपने जो जो भी एरिया है उसमें उसको सक्सेसफुली सेल कर पा रहे हैं, तो उसको धीरे धीरे बढ़ाइए और फिर अपने लोगों को जोड़ते जाइए। फिर कहीं से फंडिंग मिल जाएगी तो आप आगे बढ़ जाएंगे। सो दिस इज द बेस्ट वे आपको आगे बढ़ने का, ठीक है। सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, लेकिन अभी भी बहुत सारे जैसे क्वेश्चंस हैं। अब होता क्या है, किसी जो इस फील्ड में उससे पूछने पे आपको क्लैरिटी ज्यादा मिलती है, जैसे भी आपने एक्सप्लेन किया। और अभी हमारे पास समय इतना है नहीं कि मैं वो सारे क्वेश्चंस पूछता जाऊं। तो क्या आप देखिए, अपनी इसके लिए मैं दो चीज सजेस्ट करूंगा। एक तो कि ऐसा नहीं है कि मैं या मेरी तरह ही लोग हैं, आपके कॉलेज में भी और इनके साथ जो भी आपके टीचर्स हैं वो भी पढ़ते हैं, वो भी एक्सपर्ट हैं। तो आप उनको जो भी लग रहा है, ये जो ऑर्गेनाइजर हैं वो कॉलेज के, वो देख सकते हैं कि वो इस तरीके का ग्रुप बनाए ऐसे बच्चों को, पर्टिकुलरली जो इस तरीके के क्यूरियस हैं, जो चाहते हैं उनको। क्योंकि सबसे बड़ी चीज मोटिवेशन है। मैंने जो महसूस किया है, मोटिवेशन के बाद में नेक्स्ट आता है कि उनको मेंटरशिप। मेंटरशिप ऐसा नहीं है कि मैं इस फील्ड का, मैं एंटरप्रेन्योरशिप का आदमी नहीं हूँ, फ्रेंकली आपको बताऊं। मेरा एरिया है फिजिक्स। फिजिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, फिजिक्स पढ़ी है, पढ़ाई है शुरू तक अभी तक। बस फिजिक्स वालों में यही होता है कि वो थोड़ा टेक्नोलॉजी को जल्दी पिकअप कर लेते हैं, तो वो मेरे साथ में भी हो गया। दूसरा यह है कि फॉर्चुनेटली मैं जहाँ इग्नू में काम करता हूँ, वहाँ जिस सेंटर में हूँ मैं, नेशनल सेंटर फॉर इनोवेशन डिस्टेंस एजुकेशन, तो इसका मैं यहाँ हूँ। शुरू में जब डिप्टी डायरेक्टर था तभी भी यही काम कर रहा था, डायरेक्टर हुआ तो मुझे ये हुआ कि मैं स्टूडेंट्स के साथ में कैसे इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाऊँ। तो जब ये मैंने सोच लिया कि नहीं, आज की जरूरत है इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप को स्टूडेंट में बढ़ाने के लिए, क्योंकि इनोवेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी सब साथ साथ चलते हैं। तो वो मैंने किया, और जब वो एक इनिशिएटिव लिया तो उसमें बहुत मैंने भी पढ़ा। मैं भी पढ़ता हूँ आपकी तरह। आप जैसे स्टूडेंट्स उनको थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, मैं थोड़ा कम पढ़ के उन चीजों को पिकअप कर लेता हूँ। आप लोगों में से भी ऐसे ही हैं, तो बस पढ़ना तो जरूरी है। तो जो जो टीचर्स हैं आपके कॉलेज वाले, मेरा सजेशन है कि ऐसे स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल छोड़िए ही नहीं, उनको तो मेंटर आप करिए ही करिए। क्योंकि 150 में से 1, 2, 3 ही ऐसे होते हैं जो कि जिनके अंदर जज्बा होता है और अपना करना चाहते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि जो देख रहे हैं कि मुझे बहुत बड़ा ऊपर वो कलेक्टर बनना है या वो जो बहुत बड़ा वो बनना है, वो सोचा रहे ये तो छोटी मोटी चीज है। जब आके देखिए वो खूब IAS बन जाओगे, वो ऐसे लोगों के आगे पीछे घूमते रहते हैं। ये भी मैं बताऊँ, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन गए तो आप देखिए जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं, चाहे वो पेटीएम का मालिक हो या ओयो का हो, ये इतने इतने बड़े हैं कि वो कितने हजार करोड़ रुपए की इनकी प्रॉपर्टी है। सब लोग जो इनके एम्प्लॉय हैं उस तरीके के। तो आप ये सर करिए। जहाँ तक मेरी बात है, मुझे जब आप कहेंगे अगर मेरे पास टाइम है तो आई विल बी हैप्पी टू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स ग्रुप में, फोकस ग्रुप में मैं जरूर बात करना चाहूँगा। मैं अपना जब भी होगा, क्योंकि आजकल तो टेक्नोलॉजी है, तो हम लोग मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं जी। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत अच्छा इंफॉर्मेटिव लेक्चर दिया है। और सर हमने ना, हमारे प्रिंसिपल सर ने यहाँ पे एक MOU किया है अम्बाला साइंस अकेडमी, ये साइंस इंस्ट्रूमेंट्स बनाने वाले लोगों के साथ में। तो हम अपने इन स्टूडेंट्स को वहाँ पर भी ट्रेनिंग भी दिलाएंगे, और कॉलेज के अंदर भी हम एक इंक्यूबेशन सेंटर डेवलप करने जा रहे हैं। तो धीरे धीरे डेवलपमेंट होएगा, और इस तरह के जो स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स को हम इन्वॉल्व करेंगे, जिससे कि हम आगे फ्यूचर में, और आपकी गाइडेंस तो हमें हमेशा ही चाहिए। मैंने तो इंडियन फिजिक्स एसोसिएशन के टाइम में भी, IAPT के टाइम में भी आपके साथ में काम किया, बड़ा अच्छा लगा। और अभी भी आपके आगे हम सोचेंगे कि भगवान करे ऑफलाइन में आपका लेक्चर करवाएं बच्चों को, जिससे कि अच्छा इंटरेक्शन हो सके। तो थैंक यू वेरी मच सर। आरती मैम। Thank you so much, sir. It was really a very fruitful session for all of us, and we all learned a lot. Especially जो लास्ट का जो डिस्कशन सेशन रहता है, उसमें हम बहुत कुछ सीख जाते हैं, क्योंकि क्वेरीज के थ्रू हम बहुत ज्यादा ग्रैब कर पाते हैं।
तो सर ये बहुत अच्छा सेशन था हम सबके लिए. Feedback form is already sent in the chat box. Everyone will please fill the feedback form for the certification purpose, and certificates will be issued after 10 days. 10 दिन के बाद आपको सर्टिफिकेट आपके मेल पे आएंगे, तो आप 10 दिन तक वेट करें. After 10 days, you will all receive your certificates, and feedback link is there. Please fill the feedback form before leaving the meeting. धन्यवाद सबका, नमस्कार. Photographs मैंने क्लिक कर लिए हैं सर. धन्यवाद मैडम. Ma'am, thank you very much. Thank you very much, everyone. Thank you very much, real ambassadors, students, all the worthy colleagues. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you, Dr. Girdhar, Dr. Mohit, Dr. Satbi, Dr. Balesh, Dr. Amandeep, Renu ma'am, Gulshan sir, all the members of IIC and EDC. Thank you, all students. Thank you, ma'am.